Hello, students. Today we go into a very beautiful part of the chapter applications of biotechnology in agriculture. What are the agricultural techniques we will employ in biotechnology? Let's understand these. Applications of biotechnology in agriculture are called BT crops. So, biotechnology has revolutionized research areas in agriculture area. सबसे पहले chemical fertilizers and pesticides use करते थे. So that was what was being used before. But chemical fertilizers and pesticides are not biodegradable. So they would accumulate in the environment and cause environmental pollution. So chemical fertilizers or pesticides are now discouraged. Now we use biopesticides and biofertilizers, which are completely chemical free. They are made from plant products और उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं. और आजकल ये बहुत ट्रेंड हवा में चल रही है, ईट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स होती है जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं किए जाते हैं. दे आर प्योरली ऑफ प्लांट सोर्स. इवन द पेस्टिसाइड्स and fertilizers are made from plants, so they are biodegradable. And nowadays, genetically engineered crop plants called as transgenic plants or BT crops are being used. These are genetically modified. इन्हें transgenic plants कहते हैं. Transgenic plants carry many desirable traits. They are disease resistant, they are insect resistant, they are herbicide resistant. So they are disease, insect, herbicide resistant. They have better photosynthetic efficiency, nitrogen fixing ability, improved storage proteins, higher vitamin content. So all these beautiful properties make all these genetically modified plants GMOs. These are also called genetically modified organisms. Genetically modified organism GMOs are more better than traditional crop plants. उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है Bacillus thuringiensis. ये एक सॉइल बैक्टीरियम है that produces the protein with insecticidal qualities. तो सर ये है Bacillus thuringiensis और Bacillus thuringiensis के अंदर एक डीएनए होता है और उस डीएनए से के अंदर एक जीन होता है कॉल्ड क्राइजीन. तो ये है क्राइजीन और क्राइजीन undergoes transcription and translation to produce a protein called as cryoprotein और ये क्रायोप्रोटीन बन जाता है. नाउ Bacillus thuringiensis को कल्टीवेट करते हैं. बैक्टीरियल Bacillus thuringiensis को एक न्यूट्रिशन मीडियम पे ग्रो किया जाता है. उसकी कॉलोनी बनती है and from the colonies of Bacillus thuringiensis with the help of the cry-gene जो क्रायोप्रोटीन बनता है उसको बैक्टीरिया से निकालते हैं और क्रायोप्रोटीन को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है. एंड वाटर प्लस क्रायोप्रोटीन बड़े बड़े सिलेंडर्स में डाल देते हैं और उनको एक इंसेक्टिसाइडल स्प्रे के फॉर्म में प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं. तो प्लांट्स पे Bacillus thuringiensis के क्राई जीन का आया हुआ क्रायोप्रोटीन प्लांट्स पे स्प्रे हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड बीटी टॉक्सिन. क्रायोप्रोटीन को बीटी टॉक्सिन कहते हैं एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ
इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, तो उसका टॉक्सिन है बट वो इनएक्टिव है। अब एक इंसेक्ट अगर उस प्लांट के लीफ को खाने जाएगा तो insect will destroy the plant leaf and the plant by eating it। लेकिन एक बार क्रायोप्रोटीन आपने स्प्रे कर लिया तो जैसे ही इंसेक्ट सॉइल में से आता है या एरियली आता है और उस लीफ के ऊपर आके खाने लगता है लीफ को, तो उसके ऊपर स्प्रे क्या किया था हमने? क्रायोप्रोटीन। एंड क्रायोप्रोटीन वाज इनएक्टिव, बट इंसेक्ट जैसे ही लीफ को खाता है साथ में क्रायोप्रोटीन उसके इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच होता है। स्टमक एसिडिक होता है बट इंटेस्टाइन अल्कलाइन होता है, एंड इन द अल्कलाइन पीएच द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन gets converted into an active form। इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है एंड एक्टिव फॉर्म कॉजेस स्वेलिंग इन द गट। तो इंटेस्टाइन के सेल्स में स्वेलिंग्स आते हैं एंड उससे पोर्स क्रिएट होते हैं। गट के अंदर इंटेस्टाइन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं एंड दैट कॉजेस डेथ ऑफ द insect because of that pores in the midgut epithelium dies। and इस तरह से आजकल बहुत सारे प्लांट्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन is now commercially available in India which protects affects cotton ball। तो कॉटन बॉल में से जो कॉटन मिलता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय किलिंग बॉलवर्म्स। ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, बीटी कॉटन को प्रोटेक्शन किससे मिलता है? बॉलवर्म। बॉलवर्म जमीन में से आता है और लीफ ऑफ कॉटन प्लांट को खा जाता है और कॉटन का क्रॉप डिस्ट्रॉय होता है। तो उसके ऊपर क्राई जीन से बनाया हुआ क्रायोप्रोटीन डाल के उसको बॉलवर्म मारने के लिए यूज किया जाता है, एंड दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन इज कॉल्ड बीटी कॉटन। तो यह है बैसिलस thuringiensis कॉटन, बैसिलस thuringiensis बीटी कॉटन। सिमिलरली आजकल बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, ऐसे बहुत सारे बीटी प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। सर, Bacillus thuringiensis is also used for having some strains। Bacillus thuringiensis की अलग अलग strains होती है। They kill certain insects such as lepidopterans, tobacco budworm and armyworm, and it kills coleopterans, beetles and dipterans, flies and mosquitoes। तो अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग क्रायोप्रोटीन बनते हैं और उससे अलग अलग टाइप के वर्म्स मारे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम क्राई। अलग अलग बैसिलस thuringiensis में अलग अलग क्राई प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन्स cry1AC and cry2AB control cotton bollworm and cry1AB controls corn borer। तो cry1AC और cry2AB से कॉटन बॉलवर्म के लिए प्रोटोटॉक्सिन बनाता है जो इंटेस्टाइन के अंदर जाके एक्टिव टॉक्सिन बनता है और वो मिडगट एपिथेलियम में जाके पोर्स बनाता है, causing cell lysis and eventually death of the insect। तो cry1AC, cry2AB से कॉटन बॉलवर्म बनते हैं और cry1AB से कॉर्न बोरर को मारा जाता है। मेज प्लांट, मेज कॉर्न के अंदर होल्स बनाने वाले इंसेक्ट को कॉर्न बोरर कहते हैं। तो मेज प्लांट बीटी मेज
is made with the help of CRY1AB gene which controls corn borer. ये भी नीट में बहुत बार पूछा गया है, कॉटन बॉलवर्म को मारने के लिए कौन से जीन्स यूज किए जा रहे हैं? CRY1AC and CRY2AB. CRY1AC and CRY2AB for cotton bollworm and corn borer के लिए CRY1AB. CRY1AB for cotton bollworm. This was Bacillus thuringiensis. And then we have a beautiful bacteria, Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens is a soil bacterium. ये एक soil bacteria है, like Bacillus thuringiensis. It causes crown gall tumor in dicot plants. Dicotyledonous plant में एक benign tumor, safe tumor called as a crown gall tumor बनाता है, Agrobacterium tumefaciens. A gall tumor producing gene tDNA occurs in a large plasmid called as tumor inducing plasmid or TI plasmid. तो TI plasmid में कौन सा जीन है? tDNA. Let's see this. सर, ये है Agrobacterium tumefaciens और ये उसी का डीएनए है और उसके अंदर ये है प्लाज्मिड and this plasmid is called TI plasmid, tumor inducing plasmid. उसमें है एक जीन, that gene is called tDNA, produces crown gall tumor. तो ये tDNA crown gall tumor बनाता है. Now, what is the beauty of Agrobacterium tumefaciens? Agrobacterium tumefaciens has an ability to insert TI plasmid in the nuclear genome of infected plant. तो TI plasmid को nuclear genome of plant cell के अंदर डाल देता है and gene transfer कर सकता है ये. तो ये है Agrobacterium tumefaciens एंड ये उसका डीएनए, ये है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में है टीडीएनए. तो टीडीएनए के साथ साथ अगर एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens को आप एक प्लांट सेल में डालो, तो प्लांट सेल में डालोगे तो उसके न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए है. Agrobacterium tumefaciens can insert the TI plasmid into the plant DNA. तो TI plasmid plant DNA के अंदर चला जाता है एंड ये है प्लांट सेल, ये है उसका न्यूक्लियस और ये है प्लांट डीएनए और प्लांट डीएनए के साथ साथ आ गया टीडीएनए क्योंकि उससे टीआई प्लाज्मिड मिक्स हो चुका है प्लांट डीएनए के साथ. तो प्लांट सेल डीएनए के साथ टीडीएनए आ गया और इस प्लांट को जब ग्रो किया जाता है तो उसके अंदर टीडीएनए की मदद से बनता है एक ट्यूमर called as crown gall tumor. तो ये है roots of the plant, ये है stem of the plant, ये है branches of the plant और उसके अंदर एक ट्यूमर आ जाता है called as crown gall tumor. So crown gall tumor is a marker gene, that TI plasmid has now become a part of the plant DNA. TI plasmid plant DNA के साथ मिक्स हो गया है
और क्राउन गॉल ट्यूमर बनता है विच इज अ मार्कर जीन. So now Agrobacterium tumefaciens is a natural engineer of plant cell. It's a natural engineer of plant cells. It can modify a plant cell. प्लांट सेल को मॉडिफाई किया जाता है. तो ये सुपर्ब है. इट इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट सेल. तो इसको अब क्या करते हैं? Agrobacterium tumefaciens is very widely used for gene transfer. Gene transfer करते हैं. We use cry gene from Bacillus thuringiensis and put it into TI plasmid. तो हम लोग क्या करते हैं? ये है Bacillus thuringiensis जो अभी अभी हमने किया. उसमें ये है बैक्टीरियल डीएनए. तो उसका क्राई जीन निकालते हैं. We remove the cry gene out of the bacterial DNA and we stick the cry gene into the TI plasmid. तो अब TI plasmid के अंदर TDNA भी है जिससे क्राउन गॉल ट्यूमर बनेगा और उसमें क्राई जीन भी है which will produce क्रायोप्रोटीन. और इस बैक्टीरिया को से कॉटन सेल के अंदर डाल दिया जाता है. तो ये है कॉटन सेल और उसके अंदर ये टीआई प्लाज्मिड. एंड व्हाट विल टीआई प्लाज्मिड डू? इट विल मेक व्हाट विल बैसिलस thuringiensis डू? ये है बैसिलस thuringiensis. उसको कॉटन सेल में डाल दिया. तो ये है कॉटन सेल. उसमें बैसिलस thuringiensis डाल दिया. सॉरी, Agrobacterium tumefaciens डाल दिया. एंड व्हाट विल Agrobacterium tumefaciens डू? ये है Agrobacterium tumefaciens. इट हैज गॉट TI plasmid. और TI plasmid में you have TDNA also and you have cry gene also. And Agrobacterium tumefaciens, we remember, has the ability कि वो TI plasmid को प्लांट डीएनए के साथ मिक्स कर ले. सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा प्लांट डीएनए. और प्लांट डीएनए के साथ साथ ये है टीडीएनए. टीडीएनए ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए. और साथ में आ गया क्राई जीन. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए के साथ साथ क्राई जीन भी आ जाता है. एंड व्हेन दिस प्लांट विल ग्रो इट हैज क्राउन गॉल ट्यूमर. तो व्हाट इज द प्रूफ कि क्राउन गॉल ट्यूमर आ गया है? क्राउन गॉल ट्यूमर आ गया है इज अ मार्कर दैट योर TI plasmid has become a part of the plant DNA. प्लांट डीएनए के साथ साथ TI plasmid मिक्स हो चुका है. तो उसमें TDNA भी आ गया, उसमें क्राई जीन भी आ गया, उसमें TDNA भी आ गया, उसमें क्राई जीन भी आ गया. और TDNA की वजह से बनेगा क्राउन गॉल ट्यूमर. बट क्राई जीन भी तो आ गया ना. तो क्राई जीन मीन्स हर एक सेल, एवरी सेल ऑफ द प्लांट विच वॉज मेड फ्रॉम दिस वन सेल. एक सेल से पूरे प्लांट को बनाते हैं बाय समथिंग कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के साथ ये हमने किया था. एक सेल के ऊपर पुट ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, उससे कैलस बनेगा. कैलस के ऊपर पुट ऑक्सिन, इट विल फॉर्म रूट्स. पुट साइटोकाइनिन, इट विल फॉर्म शूट. तो एक ही सेल से कैलस बाय ऑक्सिन साइटोकाइनिन, with more oxygen root, with more cytokinin shoot, and we by tissue culture produce the entire plant. और पूरे प्लांट के अंदर ये है cells containing them
क्राइजीन। तो इस प्लांट के लीफ के हर एक सेल में क्राइजीन हो जाएगा एंड क्राइजीन विल प्रोड्यूस क्रायोप्रोटीन। क्राइजीन विल प्रोड्यूस क्रायोप्रोटीन। तो समझो बॉलवर्म इस कॉटन लीफ को खाता है, तो क्रायोप्रोटीन आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। आप कॉटन प्लांट के हर एक सेल में नेचुरली क्रायोप्रोटीन है एंड क्रायोप्रोटीन जैसे ही इंसेक्ट खाएगा, इनएक्टिव क्रायोप्रोटीन मिडगट एपिथेलियम में जाके एक्टिव हो जाएगा and it will cause swelling of the cells of the midgut epithelium and pores are created in the midgut, in the intestine, and intestine में pores आ जाएंगे and the bollworm will die. Bollworm इस तरह से मर जाएगा। तो ब्यूटिफुली हमने टीआई प्लाज्मिड को बैक्टीरियल टीआई प्लाज्मिड को प्लांट डीएनए के साथ मिक्स कर दिया। व्हाट इज टीडीएनए एंड क्राइजीन बोथ अ पार्ट ऑफ प्लांट? बोथ टीडीएनए एंड क्राइजीन इज अ पार्ट ऑफ प्लांट क्योंकि दे वर इन द सेम प्लाज्मिड। एंड एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन की एबिलिटी क्या थी कि वो टीआई प्लाज्मिड को प्लांट डीएनए के साथ मिक्स कर देता है एंड प्लांट डीएनए आ गया जिससे प्लांट ग्रो होगा, साथ में टीडीएनए आ गया जिससे क्राउन गॉल ट्यूमर होगा और साथ में क्राई प्रोटीन आ गया जिससे लीफ में क्रायोप्रोटीन बनेगा और क्रायोप्रोटीन को खाते ही बॉलवर्म मर जाएगा। ब्यूटिफुली डन। वी हैव डन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ कॉटन प्लांट using Agrobacterium tumefacium. Similarly, we can use Rhizobium bacteria to transfer NIFG. सर ये है राइजोबियम बैक्टीरिया और राइजोबियम में एक जीन होता है कॉल्ड एज NIF, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, which produces नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड NIF से नाइट्रोजिनेज एंजाइम आता है। तो ये है टीडीएनए और ये है NIFG। और इसे राइस प्लांट में डाल दिया तो क्राउन गॉल ट्यूमर तो बन जाएगा, बट NIF जीन इज देयर इन द रूट्स, इन द स्टेम, इन द ब्रांचेस। हर एक सेल में NIF जीन है। इन अदर वर्ड्स नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनेगा which will help in nitrogen fixation by the rice plant। तो राइजोबियम का प्रॉपर्टी राइस को मिल जाएगा क्योंकि राइजोबियम में नाइट्रोजनेस किसने बनाया था? NIF जीन ने। हमने उसी NIF जीन को एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन की मदद से राइस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। So now rice is producing nitrogenase enzyme. Beautifully done. Similarly, we have flavor saver tomato is developed by introducing an antisense gene that retards ripening. It produces less cell wall degrading enzyme polygalactourinase. Sir, टमाटर बहुत जल्दी सड़ जाता है। टमाटर बहुत जल्दी सड़ जाता है क्योंकि टमेटो का प्लांट जैसे ही ग्रो होता है, उसका जैसे ही फ्रूट आता है ना, तो फ्रूट के वॉल में एक एंजाइम होता है कॉल्ड एज पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस और पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है, सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है जिससे टमाटर बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन की मदद से एक एंटीसेंस जीन डालते हैं।
So we put an antisense gene, antisense gene, and antisense gene will go into the tomato plant. तो टमेटो प्लांट में एंटीसेंस जीन चला जाएगा एंड दिस इज योर एंटीसेंस जीन एंड व्हेन द टमेटो प्लांट विल ग्रो उसके फ्रूट के अंदर एंटीसेंस जीन will produce enzyme and that enzyme will oppose polygalacturonase. तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस को ऑपोज कर देगा एंटीसेंस जीन से बना हुआ एंजाइम, तो पीजीयू डिग्रेड हो जाएगा, पीजीयू डिग्रेड हो जाएगा तो सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम चला जाएगा एंड एक बार सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस चला जाएगा, that means cell wall of the plant will not degrade and fruit will remain fresh for a long time and shelf life of the fruit will increase and the taste will also be remaining the same. वो एक बार टमाटर सड़ जाता है तो खट्टा खट्टा हो जाता है, तो ये शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और खट्टा नहीं होगा, टमाटर मीठा ही रहेगा, विच इज एन एडिशनल एडवांटेज। और इसे फ्लेवर सेवर टमेटो कहते हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है फ्लेवर, टेस्ट को सेव करने वाला फ्लेवर सेवर टमेटो। फ्लेवर सेवर टमेटो बनाते हैं यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन, और उसमें कौन सा जीन डाला हमने? एंटीसेंस जीन। और कौन से सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम को हमने ऑपोज किया? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस को हमने ऑपोज किया एंड वी प्रोड्यूस्ड फ्लेवर सेवर टमेटोज विद द हेल्प ऑफ इट। एंड गोल्डन राइस बनाया जा रहा है with greater provitamin A, बीटा कैरोटीन। तो प्रोवाइटामिन ए बीटा कैरोटीन से गोल्डन राइस बनाया जा रहा है। सर हमारे देश में नाइट ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन है बच्चों में, and night blindness is there because to prevent night blindness we need vitamin A। और ये जो गरीब बच्चे होते हैं बेचारे जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल जाते हैं बट दे डोंट गेट इनफ विटामिन। तो आजकल क्या करते हैं, हमने प्रोवाइटामिन ए बीटा कैरोटीन का जीन कट करके हमने टीआई प्लाज्मिड में डाल दिया, बीटा कैरोटीन जीन और प्रोवाइटामिन ए जीन, प्रोवाइटामिन ए जीन, और उसको हमने राइस प्लांट में डाल दिया। तो राइस प्लांट में अब बीटा कैरोटीन जीन आ गया एंड इट विल हैव क्राउन गॉल ट्यूमर ऑफ द राइस, वो तो मार्कर है, एंड राइस प्लांट के हर एक सीड में बनेगा बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन, प्रोवाइटामिन ए, और वो सीड का कलर बिकॉज ऑफ राइस हम लोग खाते हैं वो व्हाइट होता है, लेकिन जिसमें बीटा कैरोटीन जीन आ गया और उससे विटामिन ए बन रहा है, दैट विल बिकम गोल्डन येलो, एंड वो गोल्डन येलो राइस हो जाएगा, उसे गोल्डन राइस कहते हैं। तो उसमें विटामिन ए ज्यादा आ जाता है। और आजकल हम लोग गोल्डन राइस बना के दाल के साथ मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं, और बच्चों को मिड डे मील्स जो होती है म्युनिसिपल स्कूल्स में बच्चों को आफ्टरनून में एक मिड डे मील देते हैं, उसमें खिचड़ी दी जाती है। तो खिचड़ी में दाल आ जाता है, राइस आ जाता है। दाल से उनको प्रोटीन्स मिलते हैं जिससे क्वाशियोरकार मेरास्मस जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होगी।
और राइस इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी मिलेगी, एंड इट इज गोल्डन राइस, सो उससे विटामिन ए मिलेगा बच्चों को, एंड दैट विल प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस इन दीज चिल्ड्रन। तो ये ब्यूटीफुल बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेशियन हमने क्राई जीन ट्रांसफर किया, एनआईएफ जीन ट्रांसफर किया, हमने एंटीसेंस जीन टू प्रिवेंट पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज फॉर्मेशन ट्रांसफर किया, हमने जीन फॉर प्रोवाइटामिन ए बीटा कैरोटीन ट्रांसफर किया। ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। व्हाट इज एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेशियन कॉल्ड एज? ये याद रखना, it is the natural genetic engineer of plant cells. Genetic engineer of plant cells is Agrobacterium tumefacium. Why? Because it has ability to mix its plasmid with the nucleus डीएनए ऑफ द प्लांट। प्लांट के डीएनए के साथ टीआई प्लाज्मिड मिक्स किया जाता है with the help of Agrobacterium tumefaciens. Beautiful logic. I hope you understood this.